Today's topic is differentiability of a function. So till now we have studied about limit of a function, then continuity of a function, now differentiability of a function. So differentiability is also based on finding out the limit. So anyhow you have to find out some limit. Based on that we will say the function is differentiable or not. Clear? So what is differentiability of a function? A function which is defined in an open interval I and a belongs to I, a is any point of this interval, then the function fx is said to be differentiable at x is equal to a if this limit exists finitely, means this limit h tends to 0 f of a plus h minus fa divided by h. So this limit exists finitely, then we say the function is differentiable at point A. So A is here, f of a plus h minus fa divided by h. So this A point, the function is differentiable this at this A points when this limit exists. So this term is also denoted by f dash a. So f dash a means the derivative of fx at the point A. It is limit s tends to 0 f of ah minus fa by h. So this is called derivative of fx at point A. So if this limit exists, then we say the function is differentiable at the point A. Now right hand derivative and the left hand derivative. So the right hand derivative or the progressive derivative of fx at point A is given by, it is denoted by r f dash a. So right hand derivative of fx at point A or f dash a plus. It is equal to limit h tends to 0 function of a plus h minus function of a divided by h, and h is small positive quantity. So this is right hand derivative, and similarly we have left hand derivative. So left hand derivative is L f dash a minus, so limit h tends to 0 f of a minus h minus fa divided by minus h, and h is greater than 0. सो जब भी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो किसी भी पॉइंट ए पर, तो आप क्या निकालेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एच. इस लिमिट की वैल्यू आपको चेक करनी है, अगर वो एग्जिस्ट करेगी तो हम बोलेंगे कि फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है. सिमिलरली अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है उस पॉइंट पर, तो एफ ऑफ ए माइनस एच करेंगे, माइनस एफ ए एंड डिवाइडेड बाय माइनस एच. हियर वी हैव पॉजिटिव एच, हियर वी हैव नेगेटिव एच. क्लियर? So in दोनों, this is left derivative, this is right hand derivative. So the derivative of f dash a exists, that is fx is differentiable at point A if the right hand derivative and left hand derivatives are equal. So in this case we have to prove this only. Means suppose we have to check one function whether it is differentiable or not, we have to check this limit. If this limit exists, then we say it is differentiable. And if a function is differentiable, then the right hand limit, right hand derivative and left hand derivative are also equal. Right hand derivative at point A, left hand derivative at point A, these are equal. If fx is differentiable in an open interval, तो किस कोई भी फंक्शन किसी ओपन इंटरवल में कब डिफरेंशिएबल होगा, व्हेन fx इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट इन दिस इंटरवल. इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल है तो वो डिफरेंशिएबल होगा. और अगर क्लोज इंटरवल की बात करेंगे, fx इज डिफरेंशिएबल इन द क्लोज इंटरवल ए बी, तो पहले तो वो ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए. मींस at each point in this interval the fx is differentiable and the right hand derivative at point A exists and the left hand derivative at point B exists. यानी A पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए क्योंकि उसके राइट में पॉइंट है, और B पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए क्योंकि इसके बैक में पॉइंट है. B के आगे वाले पॉइंट हमारे इस क्लोज इंटरवल में नहीं है. सो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए फॉर क्लोज इंटरवल. अदर फॉर्म ऑफ एफ डैश ए कुछ नोटेशंस ये भी यूज करते हैं. f dash a is equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f a by h, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और सेकंड फॉर्म इज लिमिट x tends to a f x minus f a divided by x minus a. तो हम ये फॉर्म भी यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंशियल फाइंडिंग आउट द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन. तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम बोलेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ए. और ये फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं है. अब अगर आप x की जगह a प्लस एच यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे
तो हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा। क्लियर? सो हम दोनों में से कोई भी फॉर्म यूज करते हैं। So now geometrical meaning of f dash a is the slope of tangent of fx at the point A, and the physical meaning of f dash a is the rate of change of fx at point A. So geometrically what f dash a represent means the first order derivative of the function at the point A. What does it mean by geometrically? So geometrically this represents slope of tangent of fx at point A. So उस फंक्शन की x इज इक्वल टू a पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली। और फिजिकल मीनिंग वैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो ये ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव कैसे प्रूव करते हैं? ये हमारा कोई फंक्शन है, मीन्स ये उसका कर्व है, तो अगर हम इस पॉइंट p पॉइंट पर हम स्लोप निकालेंगे दिस टेंजेंट, तो टेंजेंट जो होगा दैट f dash a is equal to 10 psi. Clear? So जो टेंजेंट है इस p पॉइंट पर वो x एक्सिस से क्या एंगल बना रही है? साई। तो 10 साई की वैल्यू जो होती है दैट इज f dash a. Now differentiability geometrically physically we have already discussed. Now slope of AB, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसका हम स्लोप अगर फाइंड आउट करते हैं, सपोज A पॉइंट A है और B पॉइंट पर x की वैल्यू a प्लस एच और इसके पीछे है a माइनस एच। सो स्लोप ऑफ AB क्या होगा? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 क्या है? क्योंकि y की वैल्यू क्या है? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो y2 मीन्स इस पॉइंट पर, सॉरी इन दोनों हम स्लोप ऑफ ए बी निकालें तो बी पॉइंट पर व्हाट इज द फंक्शन वैल्यू? सो फंक्शन वैल्यू इज द एक्स पॉइंट इज ए प्लस एच, इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ ए प्लस एच। सो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ए पॉइंट कैपिटल ए पर हमारा पॉइंट एक्स की वैल्यू क्या है? ए स्मॉल ए, तो इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? एफ ए। सो माइनस एफ ए, एक्स टू क्या है? एक्स ए प्लस एच और एक्स वन क्या है? ए। सो ऑफ ए से ए कैंसिल होके क्या बचेगा? ये वाला पार्ट। अब व्हेन b टेंस टू a तो h टेंस टू 0। जब b पॉइंट a की तरफ अप्रोच करेगा तो ये h जो है, जो क्योंकि a से हम कहाँ जा रहे हैं? a प्लस एच पर, तो जैसे ही b a की तरफ अप्रोच करेगा तो h क्या हो जाएगा? टेंस टू 0। so limit h tends to 0 f of a plus h minus f a by h is this is called right hand derivative or f dash a plus। ऐसी स्लोप ऑफ ए सी, ये पॉइंट सी पीछे है तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें तो स्लोप ऑफ ए सी क्या होगा? एफ ऑफ ए माइनस एच बाय माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एच माइनस ए। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये माइनस एच बचेगा, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए व्हेन if right hand derivative and left hand derivative are equal. Now differentiability versus continuity. What is the relation between differentiability of any function and the continuity of that function? So differentiability always implies the continuity, means a function which is differentiable is always continuous. So इसका proof भी है, means अगर fx differentiable है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच। सो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल गिवन है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? फाइनाइट वैल्यू देगा। इस लिमिट की हमें क्या फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, और फाइनाइट मिलेगी तो हम इसमें h का मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि लिमिट क्या है? h टेंड्स टू 0। तो इस नंबर में हमने क्या किया? h का मल्टीप्लाई कर दिया और h टेंड्स टू 0, क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू है h टेंड्स टू 0 पर और ये h है। सो फाइनाइट इनटू 0 इज 0। तो h से h कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए 0। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच क्या आ जाएगा? एफ ए। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट a इज इक्वल टू एफ ए। ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव में सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे तो राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट a इज इक्वल टू एफ ए। ये किसकी डेफिनेशन है? कंटिन्यूटी की। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट a. So if a function is differentiable, it is always continuous. Now this is the necessary condition only, means any function is differentiable will be continuous, but हम reverse नहीं बोल सकते हैं कि अगर कोई function continuous है तो differentiable होगा।
So if a function is continuous, it does not mean that function is differentiable. We have to check that. Clear? A function which is continuous need not to be differentiable. तो वो हम प्रूव भी किया है, एफ एक्स अगर कंटिन्यूस है तो केवल हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एफ ए के इक्वल होंगी. तो लेफ्ट हैंड लिमिट ए के इक्वल है तो माइनस एफ ए किया, और अगर हम एच से डिवाइड करेंगे इस नंबर को तो क्योंकि एफ ऑफ ए एच माइनस एफ ए क्या है, जीरो है, और एच भी जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, सो जीरो बाय जीरो फॉर्म में बनेगा. तो ये एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के बाद मिलेगा. सो दिस इज नॉट नेसेसरी कंडीशन. एग्जाम्पल भी है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, साइन एच बाय एच फंक्शन जो है वो वन की तरफ अप्रोच कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है यानी कंटिन्यूस है. बट अगर हम लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच बाय एच, और इसमें हम एच का और डिवाइड कर दें, क्योंकि डेरिवेटिव के लिए हमें क्या चाहिए, ये चाहिए ना कि जो भी डिफरेंस था उसमें हम अगर एच का डिवाइड करें वो एग्जिस्ट करनी चाहिए. हम एच का डिवाइड करने के बाद ये वाली जो लिमिट है दैट डज नॉट एग्जिस्ट, तो यानी कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है. नाउ डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूटी इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबिलिटी. अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस है सो इट इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल. क्लियर? रिवर्स है, कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल जरूरी नहीं है, बट अगर डिसकंटिन्यूस है तो वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा. ठीक है, ये एग्जांपल है. डिसकंटिन्यूस है तो हमने ए पॉइंट पर उसको डिसकंटिन्यूस कर दिया. अगर सपोज उसका ग्राफ ये है, x इज इक्वल टू ए पर 3 पर जा रहा है और राइट हैंड लिमिट कहाँ जा रही है, 4 पर जा रही है. डिसकंटिन्यूटी का केस है क्योंकि x इज इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट तो 3 दे रही है और राइट हैंड लिमिट 4 दे रही है, तो दोनों लिमिट अलग लगा रही है यानी वो कंटिन्यूस नहीं है. तो x इज इक्वल टू ए पर डिसकंटिन्यूस है. अब इस फंक्शन को हम बता देंगे नॉन डिफरेंशिएबल है. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एच. तो ए माइनस एच, ए से जैसे ही कम जाएंगे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 3, सो 3, और एफ ऑफ ए जो है वो कहाँ है, यहाँ पर आ रहा है 4 डिवाइडेड बाय एच. सो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि एच टेंड्स टू जीरो है तो ये कहाँ जाएगा, माइनस इनफाइनिट पर. और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर बात करें एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय एच, सो एफ ऑफ ए प्लस एच, ए से आगे जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 4, एफ ऑफ ए पर भी वैल्यू क्या है 4, सो 4 4 माइनस 4 जीरो बाय एच, सो जीरो बाय जीरो. तो ये एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, बट ये तो माइनस इनफाइनिट होगी ना. सो एटलीस्ट वन ऑफ द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, सो नॉन डिफरेंशिएबल. नॉन डिफरेंशिएबल डज नॉट मीन डिसकंटिन्यूटी. जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल अगर नहीं है तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे डिसकंटिन्यूस होगा. नॉन डिफरेंशिएबल अगर है तो कंटिन्यूस भी हो सकता है, नॉन कंटिन्यूस भी हो सकता है. जैसे एग्जांपल है मोड एक्स. मोड एक्स अगर आप चेक करोगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, क्योंकि हम ए पॉइंट जीरो पर निकाले हैं, सॉरी, तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बाय एच. सो एफ ऑफ जीरो प्लस एच यानी एफ एच की वैल्यू क्या है, मोड एच यानी एच, क्योंकि एच क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मोड एच की वैल्यू क्या होगी, एच माइनस एफ जीरो, मोड ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और डिवाइडेड बाय एच. सो एच बाय एच कैंसिल होकर क्या मिलेगा, 1. और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर चेक करेंगे तो एट पॉइंट जीरो पर हम चेक कर रहे हैं. So this is the definition of mode x. X is greater than equal to 0, then it is x, and when x is less than 0, it is minus x. Now limit h tends to 0 at the point, so f of 0 minus h minus f0. So 0 minus h यानी 0 से पीछे गया और h पॉजिटिव क्वांटिटी है इसलिए क्या हो गया, नेगेटिव वाला वैल्यू हो गया. तो फंक्शन की इसकी वैल्यू क्या होगी, मोड ऑफ माइनस h यानी क्या हो जाएगा, माइनस h माइनस एफ जीरो की वैल्यू क्या है, 0 डिवाइडेड बाय माइनस एच. तो तो लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन होती है 0 माइनस एच एफ जीरो डिवाइडेड बाय माइनस एच. तो एफ ऑफ 0 माइनस एच दैट मीन्स एफ ऑफ माइनस एच, एफ ऑफ माइनस एच मीन्स मोड ऑफ माइनस एच. सो मोड तो माइनस को प्लस कर देगा, सो मोड ऑफ एच, सो मोड ऑफ एच इज एच, सो दिस इज एच बाय माइनस एच, दिस विल बी -1. सो दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल क्योंकि दोनों लिमिट डिफरेंट है. तो नॉन डिफरेंशिएबल है
तो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है क्योंकि दोनों लिमिट दोनों डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a minus h, a की वैल्यू क्या है 0, so 0 minus h, that means mode of minus h, and mode of minus h is plus h, so this is 0. And right hand limit 0 plus h, so mode of h is h, and h tends to 0 पर ये क्या आ जाएगा 0, तो दोनों, और f0 भी मोड 0 के इक्वल है यानी वो भी 0 है, तो तीनों वैल्यू इक्वल है यानी फंक्शन कंटिन्यूअस तो है। So this means नॉन डिफरेंशिएबल है, तो जरूरी नहीं कि वो डिसकंटिन्यूअस होगा, वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है। अब कुछ क्वेश्चंस है, सो हमें चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट 1 दिस मोड ऑफ log x। सो मोड ऑफ log x की डेफिनेशन क्या होगी, log x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि मोड log x जो 1 के बाद क्या है पॉजिटिव होता है, 1 पर क्या होता है log 1 0 होता है, तो log 1 0 है और 1 के आगे सारे पॉइंट पर पॉजिटिव वैल्यू होगी, सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 जब भी x होगा, सो दिस मोड log x इज इक्वल टू log x। बट अगर लेस देन 1 है तो log x की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, ये वाली। तो नेगेटिव को हमें पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मोड x का फंक्शन ये होता है, और लेस देन 1 पर ये भी पॉजिटिव हो जाता है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर log x हो गया, और x लेस देन 1 पर माइनस log x। क्यों, क्योंकि आपको मोड x की प्रॉपर्टी पता है ना, कि मोड x इज x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मोड x इज इक्वल टू माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। तो log x में भी सेम कंसेप्ट लगाएंगे, log x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस log x, और x लेस देन 1 पर और log x नेगेटिव होता है इसलिए माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मोड वैल्यू आपको पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। अब इसको हम चेक करते हैं, हमें क्या करना है, डेरिवेटिव चेक करना है, x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट 1 क्या होती है डेफिनेशन, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 minus h minus f1 divided by h, ये होता है ना डेफिनेशन, f of a minus h minus fa by h, लिमिट h टेंड्स टू 0 एट द लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो a की जगह क्या है, किस पॉइंट पर चेक करना है, 1 पर, इसलिए 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 minus h, तो अगर डेफिनेशन लगाएं, so this is function of 1 minus h is equal to mode of log 1 minus h। अब 1 minus h क्योंकि हम कर रहे हैं, क्योंकि h क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो 1 minus h दैट मींस 1 में से कम हो गया कुछ, और जैसे ही x लेस देन 1 होगा तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, माइनस log x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस log 1 minus h। 1 पर क्या है log x, यानी 1 पर फंक्शन क्या हो जाएगा log 1, और log 1 क्या होता है 0, so limit h tends to 0 minus log 1 minus h divided by minus h, so माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये क्या बोलेगा आपको, log 1 minus h by h, तो लिमिट h tends to 0, ये आपको क्या मिला, थीटा टेंस टू 0 पर, थीटा अगर माइनस h अपन सपोज ले लिया, तो h अगर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो थीटा भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, क्लियर। सो दिस इज माइनस ये वाला माइनस मैंने यहीं रख दिया, और माइनस h को मैंने थीटा लिख दिया, ठीक है, तो ये बन गया 1 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा एंड लिमिट थीटा टेंस टू 0। तो आपको ये प्रॉपर्टी लिमिट में हमने पढ़ा था कि लिमिट x टेंस टू 0 log 1 plus x by x is 1, so limit theta tends to 0 log 1 plus theta by theta is 1, so this is minus 1, so this is minus 1। next right hand derivative वो क्या होता है, limit h tends to 0 f of a plus h minus fa divided by h, तो a की वैल्यू क्या है 1, so 1 plus h f1 h, so f1 plus h यानी 1 से कुछ ज्यादा है, तो डेफिनेशन कौन सी लगेगी, log x वाली, so log 1 plus h minus f1, तो 1 पर क्या है log x है, तो log 1 डिवाइडेड बाय h, तो log 1 plus h, तो log 1 plus h बाय h, log 1 तो 0 होगा, तो ये केवल क्या बचेगा log 1 plus h बाय h, और लिमिट h टेंस टू 0, तो वापस यही वाला कंसेप्ट लग जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 log 1 plus h बाय h, वो क्या होता है 1 होता है, लिमिट प्रॉपर्टी से हमने लिमिट में चेक किया था, तो एक -1 आ रहा है, एक +1 आ रहा है, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। दूसरा क्वेश्चन fx e टू द पावर माइनस मोड x, किस पॉइंट पर चेक करना है वो हम चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 पर,
तो x इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 बाय माइनस h. सो लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर, क्योंकि 0 माइनस h यानी फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ऑफ माइनस h. सो फंक्शन ऑफ माइनस h क्या है, e टू द पावर माइनस मोड माइनस h. सो मोड माइनस h को प्लस h कर देगा, सो केवल क्या बचेगा, e टू द पावर माइनस h माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस h. तो ये किस टाइप का हो गया, x को मैंने माइनस h से रिप्लेस कर दिया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाय x. अगर हमने ये लिमिट में, आपको क्वेश्चन याद हो तो ये क्या बनेगा, e टू द पावर 0 यानी 1 माइनस 1 0 और ये 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म बनेगा. तो आप इसको क्या करोगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, 1 का 0 x का 1, तो केवल क्या बचेगा e टू द पावर x. अब x टेंड्स टू 0 लगाओगे तो e टू द पावर 0 ये 1 आपको दे देगा. राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या करोगे, 0 प्लस h 0 h. सो 0 प्लस h यानी f ऑफ h की वैल्यू क्या होगी, e टू द पावर माइनस मोड h. f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, e टू द पावर, ये क्या है f0, e टू द पावर 0 रखोगे, सो मोड 0 इज 0, सो e टू द पावर 0 1, तो ये 1 आ गया एंड डिवाइडेड बाय h. सो e टू द पावर माइनस मोड h क्या होगा, हमने h लिख दिया, और अब हमने क्या किया, वही माइनस h को नीचे माइनस का मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी माइनस का मल्टीप्लाई किया. अब आपको पता है ये क्या बन गया, ये फिर से 1 बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर, क्योंकि इसी टाइप का तो बना है ये वाला, तो ये 1 हो गया, लेकिन माइनस 1 का मल्टीप्लाई है, इसलिए क्या बनेगा, माइनस 1. तो दोनों इक्वल नहीं है, अगेन नॉट डिफरेंशिएबल. क्लियर. तो ये इसका ग्राफ भी है, e टू द पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, और e टू द पावर x का है, ये e टू द पावर माइनस x का है, अगर मोड की बात करते हैं. ठीक है, x ग्रेटर देन 0 तो e टू द पावर माइनस x ही रहेगा ये, इसलिए e टू द पावर माइनस x का ऐसे ग्राफ जाएगा, और x अगर लेस देन 0 है तो ये मोड x क्या बन जाएगा, माइनस x, इसलिए माइनस माइनस प्लस x, तो e टू द पावर x, तो वो ग्राफ इतना बनेगा. सो इस शार्प टर्न पर देखो, डिफरेंशिएबिलिटी की एक और कंडीशन होती है, अगर आप ग्राफ आपको पता है उस फंक्शन का, उस ग्राफ में अगर उस पॉइंट पर शार्प टर्न है, जैसे अगर हम रेक्टेंगल बनाए, तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. क्यों, क्योंकि शार्प टर्न है, यहां से लेकर यहां तक जा रहा था लेफ्ट हैंड पर, लेकिन राइट हैंड पर एकदम से डाउन हो गया. या कोई भी हम एक शार्प टर्न अगर जब भी लेंगे, तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू अलग अलग आती है. पर अगर स्मूथ जा रहा है नॉर्मल कर्व की तरह, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल होगा. बट अगर इस तरह से जा रहा है ट्राइंगल की तरह, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा. शार्प टर्न जब भी मिलेगा तो वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों डिफरेंट आएंगे. ऐसे कुछ क्वेश्चंस और हैं. अब ये क्वेश्चन है कि अगर फंक्शन की वैल्यू ये है एंड इट इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1, देन फाइंड a एंड b. तो x इज इक्वल टू -1 पर ये डिफरेंशिएबल दिया है फंक्शन, तो हम डिफरेंशिएबल है यानी कंटिन्यूअस भी होगा. एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस. तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगी कि नहीं. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस 1 दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि डिफरेंशिएबल इसलिए कंटिन्यूअस भी होगा. सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a की जगह -1 रख देते हैं, तो -1 प्लस h और -1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0. तो अब डेफिनेशन लगा दिया, तो ये बन गया h माइनस 1, ये बन गया माइनस कॉमन ले लिया तो h प्लस 1. अब डेफिनेशन लगा दीजिए, तो h माइनस 1 में कौन सी डेफिनेशन लगेगी, अगर देखिए h क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, सो 0 माइनस 1 आपका जो होगा वो क्या करेगा, -1 से ज्यादा होगा. अगर h सपोज 1/2 होता तो 1/2 -1 क्या होगा, -1/2, यानी -1 से ज्यादा है, यानी ये वाला केस बनेगा. जैसे ही x -1 से ज्यादा गया तो हमारा फंक्शन ये वाला काम करेगा. तो हमने इसमें डेफिनेशन लगा दी, f ऑफ h -1 क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां h -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया. ऐसे ही राइट हैंड साइड में अगर हम बात करें, f ऑफ -h प्लस 1, तो h प्लस 1 और 1 में हम कुछ पॉजिटिव ऐड कर दिया, यानी 1 से ज्यादा हो गया तो नेगेटिव कर रहे हैं. तो नेगेटिव कर रहे हैं यानी ये वैल्यू जो होगी तो हमारी क्या होगी, -1 से कम हो गई. कुछ ऐड किया ना, 1 प्लस h, सपोज h 1/2 है तो 1 प्लस 1/2 3/2, तो -3/2 हो गया, -1 से भी कम हो गया, तो वो वाले फिर हमें ये वाली डेफिनेशन लगेगी. तो a x की जगह -h प्लस 1 प्लस b
इन दोनों का अब हमने लिमिट h टेंड्स टू 0 अप्लाई कर दिया, तो h की जगह 0 लिख दिया, तो हमें एक इक्वेशन मिली ये वाली, जिसको सॉल्व किया तो हमें b की वैल्यू मिल गई 1। अगेन fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट -1 इक्वल होगा, यानी ये दोनों इक्वल होंगे, यानी ये दोनों इक्वल होंगे। इनकी डेफिनेशन लगा दी, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट -1 क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a की जगह क्या आ जाएगा -1 माइनस h माइनस f ऑफ -1 डिवाइडेड बाय माइनस h इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, f ऑफ a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाय h, a की जगह हमने -1 रख दिया। इसमें भी हमने वही किया, ये -1 माइनस h है, यानी -1 से और छोटी क्वांटिटी होगी, तो हमने पहली वाली डेफिनेशन लगा दी, और ये वाली -1 प्लस h कुछ ऐड हो रहा है -1 में पॉजिटिव, तो यानी उसके -1 से ज्यादा होगी वैल्यू, यानी ये वाली डेफिनेशन लगेगी। इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमें ये इक्वेशन में इससे हमें एक की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब ये वाला है मोड x और प्लस मोड x -1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। तो मोड x की वैल्यू क्या होती है, -x, x -1 क्या होगा 1 माइनस x, then x is less than 0। और अगर x ग्रेटर देन 1 है तो मोड x तो x ही होगा, और x -1 जो है वो x -1 ही होगा। मोड x की क्या प्रॉपर्टी होती है, मोड x इज इक्वल टू प्लस x और माइनस x। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो प्लस x होता है, और x लेस देन 0 है, दूसरा केस x लेस देन 0, तो क्या होता है माइनस x हो जाता है। तो वही पॉइंट्स पे जब x लेस देन 0 है तो मोड x की वैल्यू माइनस x होगी, और ये भी माइनस होगा क्योंकि x लेस देन 0 है, यानी ये वैल्यू भी नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ x -1 क्या हो जाएगा 1 माइनस x। क्लियर। और 0 से ज्यादा है तो मोड x तो x ही होगा, लेकिन x -1 अभी भी नेगेटिव होगा 0 और 1 के बीच में, क्योंकि 0 से 1 तक अभी भी x -1 नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो माइनस का मल्टीप्लाई करने का, तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस x। लेकिन ग्रेटर देन 1 होगा तो दोनों ही सेम होंगे, क्योंकि दो x ग्रेटर देन 1 पर x भी ग्रेटर देन 0 होगा, और x -1 भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो वही इन्होंने डेफिनेशन लगाई है कि वही सारी कंडीशन लिख दी है, x लेस देन 0 पर ये वैल्यूज हैं, तो टोटल फंक्शन क्योंकि इन दोनों का एडिशन है तो x लेस देन 0 पर क्या हो जाएगा, पहली वाली डेफिनेशन 1 माइनस एक्स, तो दो 1 माइनस 2x हो गया। ऐसे ही दूसरी वाली डेफिनेशन 0 और 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू 1 हो गई, और तीसरी वाली 2x माइनस 1 हो गई। अब राइट हैंड डेरिवेटिव वो क्या होता है, किस पॉइंट पर निकाला हमें, x इज इक्वल टू 0 पर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f a बाय h, a की वैल्यू 0 है, तो ये हमारा फंक्शन बना। f ऑफ h की वैल्यू, f ऑफ h यानी h क्या है, पॉजिटिव स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 0 से 1 के बीच में आएगा, क्योंकि h क्या है, इट इज वेरी मींस स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव तो है बट इट इज ऑलमोस्ट जीरो, जीरो के पास वाली कोई पॉजिटिव वैल्यू, तो 0 और 1 के बीच में फंक्शन जाएगा, यानी ये वाला लगेगा 1, तो डेफिनेशन क्या होगी 1। और f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0 पर भी यही है 1, तो 0 पर भी 1 आ गया, और डिवाइडेड बाय h, तो 0 बाय h यानी 0 आ गया। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो h टेंड्स टू 0 लिमिट a माइनस h माइनस एफ ए बाय माइनस h, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन ये होती है। तो f ऑफ माइनस एच माइनस 0 बाय माइनस एच, अब f ऑफ माइनस एच और h क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो माइनस एच क्या होगी, नेगेटिव क्वांटिटी, तो लेस देन 0 वाली डेफिनेशन लगेगी, यानी 1 माइनस 2x वाली। सो 1 माइनस 2x की जगह क्या है माइनस एच, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 1, f ऑफ 0 x जब 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, तो 1। इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो -2 आ रही है, तो एक 0 एक -2 यानी दोनों डिफरेंट है, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर। ऐसे ही x इज इक्वल टू 1 पर भी कर सकते हैं, तो अब राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस f1 डिवाइडेड बाय h, तो 1 प्लस एच यानी 1 के आगे चला गया फंक्शन, आगे चला गया यानी ये वाली डेफिनेशन लगी 2x माइनस 1 वाली, तो 2x माइनस 1, x की जगह क्या रख दिया 1 प्लस एच। तो सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, 2 आ गया। ऐसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 माइनस एच किया, यानी 1 से कम हो गया फंक्शन x, तो 1 से कम पर क्या जाएगा ये वाला, तो 1 वैल्यू है, तो 1, और f1 1 भी 1 है, तो ये 0 आ रहा है। सो इधर भी इक्वल नहीं है, यानी नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1।
ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, मोड एक्स इज कंटिन्यूअस, एक्स इज इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर? तो कंटिन्यूअस प्रूफ करना है तो कंटिन्यूअस आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट 0, फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 0 तीनों इक्वल आनी चाहिए, तो तीनों इक्वल आ जाएंगी। और डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल नहीं है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू चेक की आपने, वो डिफरेंट आ रही है, यानी डिफरेंशिएबल नहीं है। ये फंक्शन है नो वेयर डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, लिमिट टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बाय एच, सो एफ ऑफ एच माइनस एफ 0 बाय एच, एफ ऑफ एच की वैल्यू, एफ ऑफ एच की व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो एच क्या है, 0 तो नहीं है, टेंड्स टू 0 है, तो ये वाली डेफिनेशन लगेगी, तो एक्स की जगह एच रख दीजिए, सो एच tan इनवर्स 1 बाय एच माइनस एफ 0 की वैल्यू क्या है, एक्स 0 है तो एफ एक्स क्या है 0, तो ये 0 हो गया डिवाइडेड बाय एच। अब तो ये 0 तो हट गया, एच से एच, ये वाला एच से कैंसिल हो गया, तो केवल क्या बचा, tan इनवर्स 1 बाय एच, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट व्हेन एच टेंड्स टू 0, तो इनफाइनाइट मतलब tan इनवर्स इनफाइनाइट कब होता है, जब थीटा क्या होगा, पाई बाय 2 होगा। ऐसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या करोगे, 0 माइनस एच माइनस एफ 0 माइनस एच, सो एफ ऑफ माइनस एच, सो एफ ऑफ माइनस एच की डेफिनेशन क्या होगी, अगेन 0 तो नहीं है एच, तो क्या यही वाली डेफिनेशन लगेगी, तो माइनस, अब x की जगह क्या रखना है, माइनस एच, सो माइनस एच tan इनवर्स 1 बाय माइनस एच डिवाइडेड बाय माइनस एच, तो माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा, tan इनवर्स माइनस 1 बाय एच, तो माइनस बाहर आ गया क्योंकि tan इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस tan इनवर्स थीटा, सो माइनस tan इनवर्स इनफाइनाइट यानी माइनस पाई बाय 2, दोनों डिफरेंट है यानी डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसे ये फंक्शन है, बस आपको कंटिन्यूटी प्रूव करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो एफ ऑफ 0 राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू आप चेक, सॉरी डेरिवेटिव नहीं, कंटिन्यूटी के केस में हम क्या बात करते हैं, लिमिट की बात, तो एफ ऑफ 0 यानी 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो 0 पर ये वाली वैल्यू है यानी 1 प्लस साइन 0, तो क्या हो गया साइन 0 0 इसलिए 1, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव यानी 0 लिमिट एच टेंड्स टू 0 0 प्लस एच, हम 0 पर चेक कर रहे हैं, तो 0 प्लस एच, तो एफ ऑफ एच हो गया, एफ ऑफ एच एंड एच टेंड्स टू 0 मींस ग्रेटर देन 0 हो गया, क्योंकि एच क्या है, पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 0 से ये वाली डेफिनेशन लगेगी, तो 1 प्लस साइन एच हो गया, 1 प्लस साइन एच, एच टेंड्स टू 0 तो अगेन 1 आ गया, 0 प्लस 0 यानी राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट 0, तो वो क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड तो 0 लिमिट 0 माइनस एच हो गया, तो 0 माइनस एच एफ ऑफ माइनस एच हो गया, यानी ये 0 से कम हो गई क्वांटिटी, तो 0 से कम हो गई यानी कि वैल्यू क्या आएगी 1, तो 1 आ जाएगी, तो तीनों इक्वल है इसलिए कंटिन्यूअस है। ऐसे ही डिफरेंशिएबिलिटी में आपको राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है, बस कब कौन सी डेफिनेशन यूज करना है वो आपको याद रखना है। ऐसे पाई बाय 2 पर भी करना है चेक, तो एक ही जगह क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा, इसको 0 पर चेक करना है, ये भी वही डेफिनेशन है जैसे हमने मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस 1 किया था, वैसे ही आपको डेफिनेशन निकालनी है। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी के, सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। कब कौन सी डेफिनेशन लगेगी ये आपको देखना है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 पर 0 है, बाकी सारे पॉइंट पर ये वाली डेफिनेशन है। हमें एक्स इज इक्वल टू 2 पर चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, तो राइट हैंड डेरिवेटिव, सो 2 प्लस एच माइनस एफ 2 एच, सो 2 प्लस एच, सो 2 प्लस एच यानी 2 के आगे गया फंक्शन, तो डेफिनेशन क्या है 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स, एक्स की जगह 2 प्लस एच रख दीजिए डिवाइडेड बाय एच, तो सिंप्लीफाई किया -1 आ गई, दूसरी वाली +1 आ गई, दोनों अलग अलग हैं इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल है। तो ऐसे ही आप आगे क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अगर कोई डाउट होता है तो हम लाइव क्लासेस में डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे आपको सॉल्व क्वेश्चन दिए हैं, सारे क्वेश्चन आप ट्राई करिए तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो इन द कमिंग lecture we will start our
next topic, which is Rolle's theorem, Lagrange's theorem, Cauchy mean value theorem,